Welcome to the yet another session on the subject computer networks. The topic of today's discussion is the fourth error detection mechanism that is called checksum. Before that, we have already discussed the VRC, LRC, and CRC. So this is the fourth error detection and the last error detection algorithm, checksum. Let's start the discussion with the basics of the checksum. So checksum is the error detection method used by the upper layer protocols, and it is considered more reliable than the LRC, VRC, and CRC. This method make use of checksum generator on sender side and checksum checker on the receiver side. So it means at the sender side, the source will be using the checksum generator to generate the checksum, and at the destination side, the receiver will be using the checksum checker to check the data for the errors. So at the sender side, what will be happening? The sender will divide the data into equal subunits of n bit length. Now normally this is 16 bits. तो सबसे पहले सेंडर क्या करेगा? उसके पास जो भी डेटा होएगा वो उसको इक्वल सब यूनिट्स में डिवाइड कर लेगा. सपोज कीजिए सेंडर के पास है टू सेंड 8 बिट्स, तो सेंडर क्या करेगा? 4 बिट्स के दो सब यूनिट्स क्रिएट कर लेगा फ्रॉम द डेटा. Now, after making the subunits, equal subunits of the data, what the sender will do? The sender will add all the subnets using one's complement method. The sum of all the units will be of n bits, and the resultant sum is then complemented. This complemented sum is called checksum, and it is appended to the end of the original data unit and then transmitted to the receiver. तो sender सबसे पहले क्या करेगा? वो data को divide करेगा in equal subunits. After dividing the data into equal subunits, he will add the subunits by using one's complement method. और उसके बाद जो result आएगा, that is again the sum no, the result will be of n bits, and then the result sum is then complemented again, and that complemented result is called checksum, and it is appended to the with the original data and sent to the receiver. On the receiving side, what the receiver will do? It will receive the data plus checksum, and it will pass the data plus checksum to the checksum checker. So checksum checker, what the checksum checker will do? It will again divide the unit into equal number of subunits of equal length, and again will add these subunits. So these subunit also contain checksum as one of the subunit as sent by the sender. Then the resultant sum is complemented. If the result of complemented sum will be 0, it means data is error free. And if the result will be non-zero, it means data has some errors. So this process can be easily it can be easily understand from this diagram. On the sender side, first of all, what the sender will do, it will divide the data into equal subunits. Then he will add the all the subunits, and after adding, it will complement the result. And this complemented result is called checksum. The sender will add the checksum to the end of the data and will transmit to the receiver. On the receiving side, the receiver will receive this data plus checksum. He will again divide the data plus checksum into equal length of subunits, और उसके बाद वो उनको ऐड करेगा और उनको कॉम्प्लीमेंट करेगा. कॉम्प्लीमेंट करने के बाद if the result is 0, it means no errors. But if the complemented result contains non-zero items, it means there is an error with the received data. Now let's understand this entire concept with the help of an example. तो example से आपको ये सारा clear हो जाएगा. तो sender side पे basically 3 steps हैं.
सबसे पहले सेंडर इक्वल सब यूनिट्स क्रिएट करेगा, फिर उनको ऐड करेगा, रिजल्ट को कॉम्प्लीमेंट करेगा, और फिर जो उसका कॉम्प्लीमेंटेड रिजल्ट होगा उसको डेटा के साथ अपेंड कर देगा और ट्रांसमिट कर देगा। रिसीवर साइड पे क्या होगा, रिसीवर को डेटा प्लस चेकसम मिलेगी, वो वापस से उसको डिवाइड करेगा इनटू इक्वल लेंथ ऑफ सब यूनिट्स, उन सभी सब यूनिट्स को ऐड करेगा और कॉम्प्लीमेंट कर देगा। अगर कॉम्प्लीमेंट करने के बाद रिजल्ट विल बी 0, इट मींस डेटा कंटेन्स नो एरर एट ऑल। तो अब इस एग्जांपल से इसको क्लियर कर लेते हैं। नाउ लेट्स सपोज दैट sender wants to transmit this data 10 10 10 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1। तो अब ये हैं टोटल 16 बिट्स। तो सबसे पहले सेंडर ने क्या किया, इन 16 बिट्स को डिवाइड कर लिया इन द ग्रुप ऑफ 2 सब यूनिट्स। हर सब यूनिट की नॉर्मली लेंथ होती है 16 बिट्स, लेकिन अगर डेटा कम हो तो लेंथ इससे कम भी हो सकती है। तो उसने डेटा को, पूरे डेटा को 2 सब यूनिट्स में डिवाइड कर लिया, फिर इन 2 सब यूनिट्स को ऐड कर लिया, 1 + 1 0 कैरी 1, 0 + 0 0, 1 + 1 0 कैरी 1, 1 + 1 0 कैरी 1, 1 + 1 0 कैरी 1, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 0 1। After adding the 2 equal length subunits, the sender will calculate the complement of the result. Complement means just reversing the value of every bit, 0 से 1, 1 से 0। So 0 से 1 कर दिया, 1 से 0, 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1, 1 से 0, 1 से 0, 1 से 0। अब ये जो कॉम्प्लीमेंटेड रिजल्ट है इसको हम बोलते हैं चेकसम। नाउ व्हाट द सेंडर विल डू, अब ये था एक्चुअल डेटा और ये था कैलकुलेटेड चेकसम। वो चेकसम को अपेंड कर देगा डेटा के लास्ट में। तो इट मींस नाउ एक्चुअल डेटा की जो लेंथ थी वो थी 16, और जो कॉम्प्लीमेंट करके हमें दोनों को, 2 यूनिट्स को ऐड करके उनका कॉम्प्लीमेंट करके बिट्स मिली हैं वो है 8। तो टोटल एक्चुअल डेटा था 16 और चेकसम की लेंथ थी 8। तो सेंडर क्या करेगा, वो डेटा प्लस चेकसम मींस 24 बिट्स ट्रांसफर कर देगा। अब रिसीवर को मिलेंगी 24 बिट्स, वो 24 बिट्स को वापस से डिवाइड कर देगा इनटू द ग्रुप ऑफ 8। तो उसने 8 बिट के अगेन 3 यूनिट क्रिएट कर लिए। अब उसको नहीं पता भाई ये क्या इसका रिजल्ट होगा क्या नहीं होगा, तो उसको 24 बिट्स रिसीव हुए थे, उसने 24 बिट्स के 3 ग्रुप्स क्रिएट कर लिए ऑफ 8 बिट ईच। अब तीनों ग्रुप क्रिएट करने के बाद उसने इसको ऐड किया, 1 + 1 0 कैरी 1, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 0 1, 0 + 0 0, 0 + 1 1। बिल्कुल ठीक, 1 + 1 0 कैरी 1, 0 + 1 1, 1 + 1 0 कैरी 1, 0 + 1 1, 1 + 1 0 कैरी 1, 0 + 1 1, 1 एंड 1। तो अब इन तीनों यूनिट्स को, सब यूनिट्स को ऐड करने के बाद रिसीवर उनका कॉम्प्लीमेंट कर देगा। कॉम्प्लीमेंट करने के बाद if the complemented result will be all zeros, it means data contains no error. But if there will be non-zero item in the complement of the sum, it means data contains some error. So checksum detects all errors involving an odd number of bits as well as the error involving even number of bits. But इसके साथ एक दिक्कत भी है. The main problem in this method is that error goes undetected if one or more bits of a subnet are damaged and the corresponding bit or bits of opposite value in second subnet are also damaged. तो अब ये देखिए, थोड़ा सा एक बार आपको देखना पड़ेगा। तो किस केस में चेकसम फेल हो जाएगा, किस केस में फेल हो जाएगा, अगर एक ग्रुप की कोई बिट्स चेंज हो गई। सपोज करो दिस इज द एक्चुअल डेटा, तो 6 बिट थे, मैंने 2 ग्रुप्स में उसको डिवाइड कर लिया, क्लियर हो गया। अब कब ये फेल होगा,
अगर पहले ग्रुप की कोई बिट चेंज हो जाएगी और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो दूसरी बिट है ऑपोजिट वैल्यू की, अगर वो भी ऑपोजिट वैल्यू होनी चाहिए, अगर 0 0 है तो फिर आई मीन इट विल बी डिटेक्टेड। लेकिन क्या होना चाहिए, जो बिट चेंज हो रही है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग बिट की ऑपोजिट वैल्यू होनी चाहिए, और वो भी अगर चेंज हो जाए तो इससे क्या होगा, एरर विल रिमेन अनडिटेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल, अब यहां पे देखिए रिसीवर को क्या रिसीव हुआ, दिस वन, पहली बिट चेंज हो गई और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग ऑपोजिट बिट थी वो चेंज हो गई। तो दोनों बिट्स के चेंज होने से आप देख सकते हो यहां पे ये था 1, ये था 0, तो यहां पे क्या हो गया, 1 की जगह पे 0 हो गया और 0 की जगह पे 1 हो गया, क्योंकि ये इसकी कॉरस्पॉन्डिंग बिट की ऑपोजिट वैल्यू थी। तो ऐसा अगर हो जाएगा तो एरर विल रिमेन अनडिटेक्टेड एज शोन इन दिस एग्जाम्पल, क्योंकि अब यहाँ पे दो बिट्स चेंज हो चुकी हैं, पहली सब यूनिट की लास्ट बिट और उसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी सब यूनिट की लास्ट बिट विद ऑपोजिट वैल्यू, दोनों चेंज हो चुकी हैं, लेकिन जो रिजल्ट है वो सारा 0 है। इट मींस द रिसीवर, द डेस्टिनेशन इज assuming that the received data contains no errors at all, but actually the data has been changed. So this is the problem with the checksum. तो अब आइए जल्दी से एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं और अपने आप करते हैं इस चीज को। तो मान लीजिए मेरे सेंडर और रिसीवर, लेट मी टेक एन स्पेसी स्लाइड, मुझे थोड़ा सा स्पेस हाँ यहीं पे यूज कर लेते हैं जी। तो हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए सेंडर के पास था डेटा सेंड करने के लिए दिस वन, सिर्फ 4 बिट्स हैं। सिंपल सी एग्जांपल लेंगे। इफ यू विल फील लाइक कि हम इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करें तो हम इसको कर लेंगे नेक्स्ट एग्जांपल में। तो नाउ सपोज दिस इज द डेटा द सेंडर वांट्स टू सेंड टू द रिसीवर। तो सेंडर के पास है ये डेटा, तो चेकसम में क्या होगा, ये डेटा एज इट तो ट्रांसमिट नहीं होगा। पहले स्टेप में क्या करेगा, सेंडर विल डिवाइड दिस डेटा इनटू सब यूनिट्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो 4 बिट्स ही हैं डेटा में, तो मैं क्या करता हूं, 2 सब यूनिट्स हम क्रिएट कर लेते हैं लाइक दिस। तो ये हो गया सब यूनिट 1 एंड दिस इज सब यूनिट 2। तो सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया, हमने डेटा को डिवाइड कर दिया इनटू सब यूनिट्स ऑफ इक्वल लेंथ। नॉर्मली अगर डेटा बड़ा होगा तो सब यूनिट की लेंथ 16 बिट्स होती है नॉर्मली, लेकिन अगर डेटा इतना बड़ा नहीं है तो इससे कम भी हो सकती है, बट ये चांसेस बहुत ही कम है। अब दूसरे स्टेप में क्या करेगा, द सेंडर विल एड द सब यूनिट। तो क्योंकि हमने अब 2 सब यूनिट्स क्रिएट करी हैं, तो सेंडर क्या करेगा, दोनों सब यूनिट्स को ऐड कर देगा। तो ही विल कैलकुलेट द सम कैलकुलेट करने के बाद 0 + 1 इज 1, 1 + 0 इज 1। थर्ड स्टेप पे वो क्या करेगा, ही विल कॉम्प्लीमेंट द द रिजल्ट ऑफ एडिशन। तो कॉम्प्लीमेंट करने का मीनिंग क्या हुआ कि बिट की वैल्यू को हम रिवर्स कर देंगे, 1 से 0 हो गया, 1 से 0 हो गया। अब ये कॉम्प्लीमेंट करने के बाद जो डेटा आपके पास आया, दिस इज कॉल्ड चेकसम, इसको हम बोलते हैं चेकसम। और अब हम क्या करेंगे, वी विल अपेंड दिस चेकसम विद द डेटा। इस डेटा के एंड में इसको अपेंड कर देंगे। तो डेटा क्या था, एक्चुअल डेटा था 1 0 0 1, और उसके साथ अब हम क्या करेंगे, 2 बिट्स को अपेंड कर देंगे। तो नाउ वी विल ट्रांसमिट दिस डेटा टू द रिसीवर। अब रिसीवर क्या करेगा, वही पहला स्टेप। अब यहां पे देखिए चेकसम जनरेट हुआ है, तो सेंडर विल यूज द चेकसम जनरेटर, लेकिन रिसीवर क्या यूज करेगा, चेकसम चेकर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले स्टेप पे द रिसीवर विल अगेन डिवाइड द रिसीव्ड डेटा इनटू द सब यूनिट ऑफ इक्वल लेंथ। तो उसने डिवाइड कर लिया, क्योंकि सब यूनिट की लेंथ 2 थी, तो उसने फिर से डिवाइड किया डेटा को 0 1। हाँ जी, दिस इज द सेकंड यूनिट एंड द फर्स्ट इज 1 0। और
तीसरा वो हमारे पास जो अपेंडेड चेकसम था, अब उसने इसको ऐड किया 1 1 1। अब इसका वो दूसरे स्टेप पे क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट करने के बाद अगर रिजल्ट 0 आ जाएगा तो इट मींस द रिसीव्ड डेटा कंटेन्स नो एरर। तो अब दिस इज द केस 1। तो मान लीजिए दिस इज द केस 1। अब केस 2 लेते हैं कि जो डेटा ट्रांसमिट हुआ उसमें से कोई बिट चेंज हो गई। तो आप ये मानते हैं कि ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन इस बिट में आ गई एरर और रिसीवर को रिसीव क्या हुआ, 1 1 0 1 0 0। अब केस 2 में पहले स्टेप में it will again divide the data into equal length of subunits. Now let's add 1 1 plus 1 0। अब इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे। कॉम्प्लीमेंट करने के बाद क्या दिक्कत हुई, 1 का हो गया 0 और 0 का हो गया 1। तो अब जो मेरा रिजल्टेंट है इट कंटेन्स नॉन जीरो आइटम, और अगर इट कंटेन्स नॉन जीरो आइटम इट मीन्स द रिसीव्ड डेटा कंटेन्स द एरर। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ। अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या है वो केस 3 देख लेते हैं। तो केस 3 में क्या हुआ, डेटा फिर से चेंज हुआ था, लेकिन डेटा कुछ इस तरह से चेंज हुआ कि ये बिट हो गई, अब ये मान के चलते हैं ये था मेरा एक्चुअल डेटा। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसमिशन मेरे पास हो गई गड़बड़। तो इस केस में क्या होगा, मेरी एक कॉरस्पॉन्डिंग बिट थी जो वो चेंज हो गई। तो इट मींस होगा क्या कि मेरी दो सब यूनिट्स की कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स हैविंग द ऑपोजिट वैल्यू, इफ दिस विल बी चेंज्ड देन द एरर विल रिमेन द अनडिटेक्टेड। वो कैसे, अब ये मान के चलते हैं ये 0 हो गया, ये हो गया 1। सो दिस इज केस 3। ठीक हो गया जी। तो अब रिसीवर को क्या रिसीव हुआ, 1 1, या इसको मैं बोल देता हूं 0 0 1 1। तो ये रिसीव हो गया जी। अब बिट कौन कौन सी चेंज हुई है, ये चेंज हुई है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये चेंज हुई है, तो साथ में चेकसम। अब यूजर ने क्या किया, रिसीवर ने फिर से उसको ऐसे ही रखा। उसने 1 1 इसका कॉम्प्लीमेंट किया, कॉम्प्लीमेंट इज ऑल जीरोज। अगर ये सारे जीरोज हैं तो इट मींस देयर इज नो एरर, बट एरर तो भाई है क्योंकि मेरी दो बिट्स चेंज हुई हैं, लेकिन ये एरर्स डिटेक्ट नहीं हुई। क्यों डिटेक्ट नहीं हुई, क्योंकि जो बिट्स चेंज हुई वो कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स थी ऑफ टू सब यूनिट्स विद द ऑपोजिट वैल्यू, इसलिए द एरर विल रिमेन अनडिटेक्टेड। सो दिस इज ऑल अबाउट द चेकसम। आज हमने डिस्कस किया चेकसम का कॉन्सेप्ट और उसकी एग्जांपल और उसकी प्रॉब्लम्स। आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ चेकसम का।